آپ کو بتائیں عید کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا ہے. جیل اسپتال کا بھی انہوں نے دورہ کیا. عید کے موقع پر انہوں نے قیدی مریضوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی اور قیدیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف عید کے روز کوٹ لکھپت جیل پہنچے ہیں. نظام اس طرح تباہ ہوا ہے. بالکل وہ بھی لوکل ارینجمنٹ تھا سر ہمارا, ہم لوگ خود سے کرتے میں گواہ ہوں کہ فون کرتے تھے. آنریبل پی ایم صاحب لاسٹ ٹائم سر جب تشریف لائے ہیں ڈائریکشن دی تو پھر ہم نے اس کو سارا لوگ بنا دیا. ابھی یہ موو ہو جاتا ہے. آپ اس کو پرسنل اپنے اس کا کریں گے. قیدیوں کی کون سی وارڈ میں آپ میں جانا چاہتا ہوں کہیں؟ ہم فیمیل کا بھی کیا ہے, ہم نے ہاسپٹل کا بھی کیا ہے, وہاں پہ بھی گفٹ دینے ہیں. چلیے جی میں یہاں بیٹھتا تھا تو واچ کر رہا تھا تو اس میں پانی اس کا لیول کم تھا. وہ اس نے پتھر پھینکے اپنا پھینک کے تو پانی کا لیول اونچا کیا. پھر آئی سا اٹ مائی سیلف. کتنی دیر رہے آپ؟ میں سیکنڈ ٹائم رہا کوئی 4-4.5 مہینے 6 مہینے. اور پہلی ٹائم میرا زیادہ وقت میں اس کو جاتا تھا اسلام آباد. پہلی دفعہ 1 ویک 6 مہینے 10 دن. ٹوٹل تو وہ میری تھی وہ 5.5 مہینے, لیکن زیادہ اوپر نیشنل اسمبلی میں وہ میں تھا. لیکن سیکنڈ ٹائم میں نے یہاں پر 5.5-6 مہینے گزارے دیا تھا نا جی لاسٹ ٹائم. تو یہ جو میں نے کہا تھا یہ جو جہاں سے کوڑا اٹھوایا جاتا ہے جی وہ ہو گیا. وہ اس کو ہم نے گراؤنڈ بنا دیا, صاف کر دیا. ابھی ڈیلی بیسس پہ آتی ہے باہر سے پی ایم اے کی گاڑی گفٹر لے کے آتی ہے. یہ جو ہے نا جی اس کا ان کا جب میں یہاں پر تھا تو بہت برے حال تھے. وہ جو ٹرکش کمپنی چلی گئی تھی اور وہی 50 سال پرانا گڈھا اور بیل آتا تھا اور اوپن اور سارا غلاظت پوری جیل میں پھرتے تھے. پتہ نہیں کہاں کہاں بیماری پہنچتی ہوگی. تو اس کا کیا انتظام کیا جائے؟ سر چیف سیکرٹری صاحب نے سر پچھلے ہفتے سر 164 ملین کی ٹریکٹر اور ٹرالیاں پنجاب کی تمام جیلوں کے لیے اپروول پینڈنگ پڑی تھی. 3 سال اس کے ڈرائیور بھرتی تھے. ابھی جون سے پہلے ہی ہم گئے تھے. تو ٹریکٹر ٹرالیاں وہ جو ڈرائیور آئے ہوئے تو اس کو وہی آؤٹ سورس کریں جو آؤٹ سورس کریں. بالکل یہ سب الٹیمیٹلی صاحب یہ خراب ہو جائیں گے. جی ایسے ہی ہے سر. آپ ایک ایماندار افسر ہیں, جب تک آپ ہیں ٹھیک, اس کے بعد سب یہ بیکوٹ جائیں گے. بالکل میں آپ کو سر سوائس کے سر اس کے علاوہ پینشن کے ایشوز ہیں, ان کی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, پرماننٹ امپلائیز کے. آؤٹ سورسنگ از سمپل ماڈل. آپ اچھی کمپنی لیتے ہیں, وہ سارا مینیج کرتی ہے, نہیں کام کرتا ہے, فارغ کریں نئی کمپنی آتی ہے. جب وہ ٹرکش تھا تو جب صاحب مجھے بتاتے تھے کہ بڑا اچھا نظام, بہت اچھا. تو اس کے بعد ایکسیلنٹ یعنی بیل گاڑی آتی تھی یقین کریں, اور اس سے جو بیماری پر تو اس کو آپ سارا اس کا نظام کریں. تو اس کو آپ نے گراؤنڈ بنا دیا. جی وہ صاف کر دیا. ابھی ہم نے ایک جو پرماننٹ ایک وہ رکھا ہوا ہے ڈیلی بیسس. میں یہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں. جی دکھا دیتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. اس کو بند رکھا ہوا ہے. جی بند ہے. اس کے بعد پھر اس کو بلاک کر دیا اندر باہر سے, صرف باہر مینٹین کرتے ہیں اس کو. لان اس کی کٹنگ کروا دیتے ہیں پودوں کی, باقی کوئی نہیں. وہ جو ہم بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتے ہیں کہ کوا بڑا چالاک جانور ہے, تو اس کا عملی مظاہرہ میں نے ایک دفعہ یہاں دیکھا. میں یہاں پر پانی وانی ان کے لیے کچھ رکھتا تھا, تو وہ اس کے مٹی کے برتنوں میں. وہ ایک دن وہ آئی واز ہیئر, اور وہ کہاں ہیں, وہ ہیں ادھر وہ جو تھے نہیں وہ جو یہاں کے جو آپ کے سپاہی ادھر ہیں. جی وہ ہیں ملازم ہے, بابا ہے. تو خیر تو میں یہاں بیٹھتا تھا تو واچ کر رہا تھا تو اس میں پانی اس کا لیول کم تھا. وہ اس نے پتھر پھینکے اپنا پھینک کے تو پانی کا لیول اونچا کیا. پھر آئی سا اٹ مائی سیلف. کتنی دیر رہے آپ؟ میں سیکنڈ ٹائم رہا کوئی 4-4.5 مہینے 6 مہینے. اور پہلی ٹائم میرا زیادہ وقت میں اس کو جاتا تھا اسلام آباد. پہلی دفعہ 1 ویک 10 دن. لیکن ٹوٹل تو وہ میری تھی وہ 5.5 مہینے, لیکن زیادہ اوپر نیشنل اسمبلی میں وہ میں تھا. لیکن سیکنڈ ٹائم میں نے یہاں پر 5.5-6 مہینے گزارے. اس کا
टॉयलेट्स कम है इनकी और इनको बनका था सर वो 2 दिन पहले डीडीसी अप्रूव हुई है जी 162 नए टॉयलेट सर मंजूर हुए हैं और फंडिंग भी उसकी रिलीज हो गई है। वो मतलब सारा मुझे मैं बताया। आपको बताता हूँ, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना जी, वो तो बैरक्स के अंदर वो कम से कम 150 वॉशरूम बनवाए हैं पैसे इकट्ठे करके, फिर उनकी रेनोवेशन की, टाइलिंग करवाई सारी, जो सेल्स के अंदर थे वो सारे टाइल्स करवाए, वाश बेसिन करवाए। जो जनाब की डायरेक्शन पे जो गवर्नमेंट ने करना है सर, वो चूँकि फिर गवर्नमेंट को ना रही हमजा साहब वो जरा मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें मुझे बताएं। ऑफिस आपको ब्रीफ कर देते हैं। अभी हुई है लास्ट 2 दिन पहले डीडीसी, अभी उसमें अप्रूव हुआ है जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा किया है। जेल अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया। ईद के मौके पर उन्होंने कैदी मरीजों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और कैदियों में तहाइफ तकसीम किए। उन्होंने जेल इंतजामात का जायजा लिया, मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया, जिस पर हुकाम ने उन्हें ब्रीफ भी किया है। और इस दौरे के दौरान कोट लखपत जेल में गुजारे अयाम का भी उन्होंने तस्करा किया है। मनाज़िर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल का दौरा किया है। उससे नाबलद हैं जेल में, जेल और ईद यकीनन अपने घर वालों से दूर आप बैठे हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जल्द यहाँ से रहाई दिलवाए और आप एक अच्छे पाकिस्तानी बनकर आप वापस जब जाएं अपने घरों में तो आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफीक दे कि आप अपने घर वालों की और अपने इलाके में जो भी आप खिदमत कर सकते हैं आप करें। मुझे इल्म है कि बाज़ मामलात में, बाज़ केसेस में ताख़ीर होती है, कुछ के साथ ज़्यादती होती है, तो उस हवाले से मैं आईजी जेल भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुप्रीम जेल भी हैं और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं एक मरतबा पर आप सबको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि जेल के अंदर ईद के क्या मानी हैं। आप अपने प्यारों से दूर हैं और वो आपको याद करते हैं, आप उनको याद करते हैं। तो मैं भी कैदी रहा हूँ तो मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जब घर ले जाए, यहाँ से जब आप रहा हूँ तो फिर आप अपने ख़ानदान की भी और अपने इलाके में जो भी खिदमत आप अदा कर सकते हैं अदा करें। और यहाँ पर अगर कोई मसाइल हैं, अगर कोई मुश्किलात हैं तो मैं आज आया हूँ आपको मिलने। मेरे दौरे का मकसद भी यही है। तो मेरे साथ जो जेल के जो हुकाम जो मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब के हुकाम मौजूद हैं, तो उसमें अगर आपको कोई मसला है, कोई शिकायत है, मुझे बताएं और यकीनन फिर इंशाअल्लाह अभी आपको तहाइफ भी तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी मुश्किलात को आसान करे और आप एक अच्छे शहरी पाकिस्तानी बनकर जब रहा हूँ तो आप पाकिस्तान की खिदमत करें इंशाअल्लाह। जी कोई आपका कोई मसला है तो बताएं मुझे। जी बीबी आइए। मैडम जी क्या मसला? जी मेरे ना बेटे का था मसला, उन्होंने 2 महीने हो गए सिया साहब वालों ने मार दिया उसे। हाँ जी, तो मेरा मियाँ भी इधर है, वो पता नहीं वो कोई लगामी, तो मेरे सर डकैती के केस में उनका केस बना था, इसका बेटे पे भी तो नजायज डाल पे तो सारे जियों को जेल में, मेरा मियाँ इस जेल में है। 6 महीने मुझे हो गया इस जेल में, कोई पीछे आने वाला नहीं है। ये जो सब इसको देखें। जी राइट सर। इसका क्या इसके मसला है तो जो भी मसला है उसको कानून मुताबिक हल करें। जी राइट राइट ठीक है मेरा मियाँ भी इसी जेल में है। जी अल्लाह ताला। मैडम पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा किसी का कोई और मसला हो और किसी का मसला है तो बताएं। जी आइए अम्मा। वो आपको आ जाए माजी, क्या मसला है माजी? जाने का मसला बस मुझे तो, हमें तीनों को 3 बंदे हैं। अम्मा जी इंटरव्यू है, इनकी
कि इंडिया की जल्दी जो से है हमारी इंक्वायरी हो जाए, हम चले जाए, वैसे ये करवा दो। प्रोसीडिंग चल रही है फेडरल रिव्यू बोर्ड में सर, फेडरल रिव्यू बोर्ड में अच्छा सुप्रीम कोर्ट में सर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसको हेड करते हैं, अच्छा या अफरीदी साहब। ठीक तो वो जब तक इंडियन गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करती जी। तब तक हम इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये फिर ले लें, मैं लॉ मिनिस्टर को जी राइट। गुजारिश करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो इस बारे में जो गुजारिश कर दें। ठीक एक्चुअली सर ये डील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अच्छा ठीक, मोफा हाँ मोफा बस करता है, ठीक। मोफा तो अब ये इंटरेक्ट करता है विद इंडियन बस ये मोफा। आप मुझे जी, दे दें, right. मैं ऊपर सारी बात बस कर ठीक। राइट। 3 बंदे हैं, राइट। 2 बंदे भी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया आपका केस भेज रहे हैं। कितना अर्सा हो गया अम्मा आपको? शुक्रिया बहुत बहुत। ये कितना अर्सा हो गया? सर पूछ रहे हैं कितना अर्सा हो गया जेल में? 9 माह हो गए। 9 माह। तो आप तो किस तरह आप यानी वीजा नहीं था आपके पास क्या? वीजा खत्म हो गया, ये अच्छा खत्म। अच्छा सामान जाते था, ले रहे थे बच्चों के लिए लेके जा रही थी। अच्छा जी बीवी मैं गुजरात दे रहने वाली हूँ, तो मेरा ना गुजरात वाले चलान भेजना ना मेहरबानी होए सर मेरी। हाँ जी मैडम सर, मेरा जरा ना 4-4 5-5 महीने मुलाकात नहीं आते, मेरे बच्चे छोटे इनकी एप्लीकेशन भेजिए। ट्रांसफर टू गुजरांवाला सर 25 साल कैद है, ये कर देते हैं, जैसे सबकी अथॉरिटी है ये कर देंगे। सर हम 2 बहनें हैं, दूसरी जी चली बस जाएंगे, दोनों की कर देते हैं, दोनों। चली जाएंगे। जी मुमताज। हाँ जी बोले आप। मुमताज सलीम। सही साहब सर मैनू 23 साल जेल च हो गए ने, मेरे पिछे बनाउण जाने वाला कोई नहीं रह गया। मेहरबानी की जाए, मेरिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ सन 2006 ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, मैं सन 2001 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ जेल ਦੇ। कई साल हो गए केस पेंडिंग है regarding remissions to the 780 cases sir. 780 She is confined in डकैती मर्डर एंड 780 दहशतगर्दी केस में इसको 25 साल सजा। और 2006 में सर सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी। कितने 25 साल हो गए उनको? जी जी 25 साल अभी नहीं थे पूरे हो गए। अच्छा पूरे नहीं हुए। 23 साल वो कहते हैं माफ़ी नहीं मिली मुझे, रिमिशन नहीं मिल रही। अच्छा 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जितने 780 के केसेस हैं उनको रिमिशन नहीं दी जाएगी। अब इन्होंने 25 साल का मतलब है कैलेंडर ईयर 25 साल अपनी सेंटेंस पूरी कर ली है जी, करनी है उसके बाद रिलीज होंगे। और इसका जो केस है रिमिशन का 780 का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अच्छा ईद के बाद सर डेट लगी हुई है। पाकिस्तान में। ये तो सर ये तो एक प्रिंसिपल तो इनको पर हम सुप्रीम कोर्ट से हम टेकअप करेंगे, जो भी इनको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के जरिए उसके लिए कोशिश करें सर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया। ठीक है बेबी जी जी जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मजदूर हूँ, बहुत सलील हुई पड़ी हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको? 4 माह। हवालात के में है 9C के केस में उनका केस चल रहा है। जल्द समाज चाहती है। नारकोटिक्स का केस है, थाने वाले 1.5 kg चर्च जो है वो डाली है। और ये दिसंबर 22 दिसंबर 2022 को ये अंदर सर। वैसे हमने अपने तौर पे इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर ग्रांट ऑफ बेल वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजी हुई है, बट शी इज़ टेलिंग कि शी इज़ इनोसेंट। पुलिस ने पर्चा डाल दिया। तो इसको देखें क्या इसका जी जी भेज देते हैं एप्लीकेशन। होम सेक्रेटरी को दे रिपोर्ट बनवा के देखने को फॉलो करें, ये सब देख लें इसको। ठीक है ACS साहब को एप्लीकेशन भेजनी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, कह दिया है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा बीवी देख लेते हैं। जी अम्मा जी जी आगे आ जाओ जी, दसो प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं साहब जी मेरी रिहाई का मसला बने 5 साल माफ़ी भी आई गई, 6-7 महीने हो गए ने, तो मैं हम बहुत मजबूर हाँ, मेरे पिछे आने ना लगो। मैंने 11वां साल है। 25 साल कैद। मेडिकल बोर्ड करवाया गया था, तो मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन मुताबिक है, उसको जरा जल्दी करने को। ये होम सेक्रेटरी को कह दिया। अब तो मेडिकल बोर्ड हो जाएगा। मजीद कोई है कोई दरखास्त? खातून कहती है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है, इनकी अपील की जल्द समाप्ति। सर अभी ACS साहब के ऑर्डर पे पूरे पंजाब में ये एक्सरसाइज की गई है। जितनी अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उनकी एप्लीकेशन सारी हमने भिजवा दी है जी।
जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एप्लीकेशन हमें भिजवा दें, मैं खुद बात करूँगा। टाइम ले लिया हमने, पर्सनली मिलकर टाइम ले लिया, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम बाकी ये तकसीम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल जेल का दौरा, उन्होंने कैदियों के लिए जल्द रिहाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन कैदियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कैदियों से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। दूसरी जानिब ये मनाज़िर हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल में जो अस्पताल है वहाँ का भी दौरा किया और कैदी मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जी कैसे नहीं, जल्द समाप्त करवा दूंगा। अपील सर सुप्रीम कोर्ट में सर ये वही बेटर है, इसकी एप्लीकेशन है लेनी सर 6000 प्लस एप्लीकेशन। ये सब इसको आप प्रायोरिटी पे ले ना, ये प्रायोरिटी पे ले। ही इज नॉट वेल, टेस्टिकल का इनको कैंसर है सर, उनके पास देने हैं सर जी। ये मैंने कहा कि अपील लगवाते हैं जी। नैब केस में ना 14 इनका सर बाईपास हुआ था 2018 शालीमार हॉस्पिटल 2018 में हुआ था सर जी। बाईपास, अच्छा बाईपास हुआ है सर, पोस्ट बाईपास और इनके डायलेटेड हार्ट डिजीज है, डेवलप करके स्किन का डिजीज है, ट्रीटमेंट से चल रही है इनकी ना पंजाब कार्डियोलॉजी। इनको क्या सजा हुई है सर इनको ना नैब के केस में ना 14 साल है नैब केस में सर। नैब केस में पंजाब सोसाइटी। तो कितना अर्सा हो गया आपको? 1 साल 6। अच्छा, तो क्या थे आप पंजाब सोसाइटी में? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन थेरेपी। अच्छा, मेजर दुष्कार के साथ ड्यूटी लगी। अंदर सर आपको सेहत से लिवर कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट हुई है? नहीं सर, अभी सर इनकी पीके लाई सर रेफर हो गई है, टेस्ट होने इसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। ये तो लिवर कैंसर है, इनको तो फौरन आप ठीक है सर लेटर आ गया ना हेल्थ सेक्रेटरी साहब का सर में डायरेक्टर डॉक्टर काजी से मैं कर लूँगा कॉल। इनको लिवर कैंसर है, इनको फौरन आप इनको अस्पताल पहुँचवाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जेल में कैदी अपने घर वालों से दूर बैठे हैं, मैं कैदियों से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि दुआ है आप अच्छे पाकिस्तानी बनकर घर लौटें। जेल के अंदर कैदियों के तासुरात के बारे में जानता हूं, मेरे दौरे का मकसद कैदियों की मुश्किलात से मुतालिक आगाही करना है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन कैदियों के मसाइल भी सुने और हल के लिए मौके पर हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल का दौरा किया और सेंट्रल जेल में अस्पताल का दौरा भी किया। कैदी मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और हिदायत भी जारी की। उस हवाले से हुकाम को ईद के मौके पर उन्होंने मुलाकात की है कैदियों से और तहाइफ तकसीम किए हैं। जेल इंतजामात का जायजा लिया, मुख्तलिफ हिस्सों का उन्होंने दौरा किया। हुकाम ने इस मौके पर उन्हें ब्रीफ किया और इस दौरान कोट लखपत जेल में गुजारे अयाम का भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्करा किया। उन्होंने कैदियों के लिए जल्द रिहाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, कैदियों से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मैं दूसरी बार इस जेल में 6 माह रह चुका हूँ, मुझे इल्म है कि बाज़ केसेस में बड़ी ताख़ीर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन कैदियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर हिदायत भी जारी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे दौरे का मकसद कैदियों की मुश्किलात से मुताल्लिक आगाही हासिल करना है। जेल के अंदर कैदियों के तासुरात के बारे में जानता हूँ। उन्होंने कैदियों से ये भी कहा कि दुआ है कि आप अच्छे पाकिस्तानी बनकर घर लौटें। उन्होंने कहा कि मैं कैदियों से मिलने आया हूँ। जेल में कैदी अपने घर वालों से दूर बैठे हैं।
जेल सुपरिंटेंडेंट की वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल जेल लाहौर के बारे में ब्रीफिंग। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईद के पहले रोज़ कोट लखपत जेल के दौरे पर पहुंचे हैं। अस्पताल भी वो गए, उन्होंने कैदी मरीजों से मुलाकात की, जेल में कैदियों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया, जेल इंतजामात का जायज़ा भी उन्होंने लिया और कैदियों से उनके मसाइल भी उन्होंने दरियाफ्त किए हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं, इस वक्त तहाइफ तकसीम किए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल जेल के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैदियों से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और इस मौके पर हुक्काम को ब्रीफ भी किया। मैं आज कोट लखपत जेल में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने जेल का दौरा किया और यहाँ पे जो कैदी हैं मर्दों से भी और ख़वातीन कैदी जो हैं उनके बच्चे भी साथ हैं, उनसे भी मुलाकात की और जो जेल की हस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों से भी मिला, उन सबको ईद मुबारक मैंने दी। ज़ाहिर है कि एक अगर कैदी है तो उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुपरिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो 2-3 बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोट लखपत जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा वो शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फॉर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसीह। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, ये कोट लखपत जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 7,000 तक 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि
400 افراد بنتے ہیں تو ان کے علاج معالجے کا جو نظام ہے وہ انتہائی خراب ہے. یعنی اگر کسی کا اگر سی ٹی اسکین ہونا ہے یا ایم آر آئی ہونا ہے یا کوئی اور ایکس رے ہونا ہے تو ہفتے نہیں مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ قیدی جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. ایک اس کو سزا ملے اپنے کیے کی اپنا بالکل وہ قانون اور انصاف کا فیصلہ ہے, مگر اس کے بعد اس کا جو بنیادی جو حق ہے اس کو چھیننا تو وہ تو سرین زیادتی ہے. قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ بھئی اگر جو قیدیوں کے لیے نرم گوشی اختیار کرو, ان کا کوئی حق جو ہے ان کے حوالے کرو. اور قرآن کریم اس کی گواہی اپنی کئی جگہ دیتا ہے کہ جب ان کو اگر چھڑاؤ گے جس کی پوری ہو گئی مدت تو اس کی اگر جو چھڑاؤ گے تو بڑا ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح جو یتیم بیوہ کا درجہ بدرجہ, تو یہاں پر ان کے علاج کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہونا چاہیے. ان کو تو اگر اپنا سروس ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا کسی اور جانا پڑ جائے تو رشوت پیسے اور سفارش کے علاوہ جا نہیں سکتے. وہ کہاں سے رشوت لائیں گے؟ وہ پہلے ہی اپنی یہاں پر آ کے ان کی عدالتوں میں ان کی وکلاء ان کی جو فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نہانا دھونا علاج معالجہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر یہ ان کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر نظام سرین یہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پرپوزل دی ہے کہ ہم ایک ہسپتال ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہو جہاں پر صرف جو 8000 قیدی ہیں ایک کا پائلٹ یہ منصوبہ ہے. اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو پنجاب میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک بڑی سوچ بچار کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح پورے پاکستان میں اس نظام کو پھیلائیں گے کہ قیدیوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہوں. وہاں پر اپنا یہ نہ ہو کہ ان کو جانا پڑے اپنا سروس ہسپتال کہ جناب اے سی ایس ہوم سے اجازت لے رہے ہیں, پہلے اپنے آئی جی سے اجازت لے رہے ہیں. میں سیاسی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں عام قیدی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال کی میں نے بات کی ہے جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہوں, سرجنز ہوں, فزیشنز ہوں, نرسز ہوں, ادویات وہاں پر موجود ہوں, خواتین کا ونگ ہو اور مردوں کا ونگ ہو, تاکہ یہ جو اس کو پورے پاکستان میں آپ یقین کر لیں کہ جو لاکھوں جو قیدی ہیں ان کو اگر اپنا خدا نخواستہ بیماری آن پڑے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا والدین بھاولپور میں رہتے ہیں, کسی کے ڈیرہ غازی خان میں, کسی کے فیصل آباد میں, وہ اگر چل کے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا ان کا جو رشتہ دار وہ کس حالت میں ہے. تو یہ بھی میں نے یہاں پر گزارش کی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اب جو میں پچھلی مرتبہ آیا تھا ہم نے باقاعدہ ایک کہ جیلوں میں بنیادی جو علاج کے مشینیں وہ موجود ہونی چاہیے, وہ آج میں نے دیکھی ہیں. آپریشن نہیں ہوئی, وہ بھی انشاءاللہ جلد آپریشن کریں گے. ادویات کا جو حصول ہے اس کو آسان بنایا جائے, کہیں رشوت نہ ہو, کسی کو اپنا پیسے نہ دینے پڑیں. قیدی سے آپ اس کو جس کو 25 سال کی سزا ہوگی اس سے آپ اور کیا ظلم کریں گے. تو یہ میں نے یہاں پر آج پھر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو ضمانت چاہیے اور ضمانت ان کے ڈیو ہے یا وہ پیرول پہ جا سکتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں نے گزارش کی ہے چیف سیکرٹری صاحب کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آئی جی جیل خانہ جات ہیں یہاں پر اور سبرنٹ موجود ہیں, یہ سب ایک باقاعدہ ایک پلان بنائیں گے پرپوزل, اس کو انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے اس کو اپروو کریں گے تاکہ قیدیوں کا جو حق ہے وہ ان کو دلوایا جا سکے. اسی طرح ان کی خوراک کی بات ہے, کھانے کے حوالے سے کہ اچھی خوراک ملے ان کو. اور پھر جنہوں نے ایک دن رہا ہونا ہے وہ جب معاشرے میں جائیں تو دوبارہ افیون چرس یا کوئی اور اپنے جرم نہ کریں. ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, وہ کارپیٹ مینوفیکچرز بن جائیں, وہ سلائی کڑھائی ان کو سکھائی جائے, ان کو اپنا فٹ بال ان کو بنانا ان کو سکھایا جائے, ہاکی کی اسٹکس بنانی سکھائی جائے, تاکہ جب وہ واپس معاشرے میں جائیں تو اچھے شہری بن سکیں اینڈ دے بیکم پروڈکٹیو ہینڈز آف دا سوسائٹی. تو یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں. لیکن میں نے جو قانونی جن کو مدد چاہیے, جن کو پیسے نہیں ہیں اور اس کی بنا پر کئی سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی فیس دینے والا نہیں, صرف جا کے ان کی ضمانت ان کی لے لے یا ان کی رہائی کے لیے انتظام کرے.
फिर इसके अलावा एक ऐसे जो कैदी हैं 2-3 मैंने देखे जब मैं यहाँ पर था, 70 साल उनको सज़ा हुई है। उनसे 35 साल किसी ने अपना 30 साल काट लिए। मैं समझता हूँ कि अपना जो उम्र कैद जो है वो 25 साल की होती है, 30 साल की होती है। जिन्होंने 30 साल काट लिए, 35 साल, उनको फिर रहा होना चाहिए, लेकिन ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई रसाई है। ये वो सारे मामलात हैं जो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और मैं अदालत जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ, जो आला अदालतें हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि सुओ मोटो, क्या आपने कितने सुओ मोटो लिए इन केसेस में? क्या पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं? क्योंकि सुओ मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सुओ मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं, पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया? ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो, और इसके अलावा कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोट लखपत जेल ईद के दिन आया हूँ, और मैंने सिर्फ इसी के लिए मैंने यहाँ पर अपना गुफ्तगू सारी डिस्कशन की है। और फिर 8-8 साल से यहाँ पर कैदी बैठे हैं जिनको फ़ौरन रिहा हो जाना चाहिए, मगर उनके पास न वकील है, न पैसे हैं। तो ये जो दौरे होते हैं, वो जो जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि पूरी इन कैदियों की मदद की जाए, और उनका जब वक्त पूरा हो जाए उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, और इस दौरान ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि दे बिकम वो मेमार बन जाएं कौम के। जब जाएं वापस तो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करें। मैं इन अल्फाज के साथ जेल इंतज़ामिया का और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी आए थे, और अभी मुझे उन्होंने बताया कि इस वक्त जिन्होंने ईद पे जिनकी रिहाई थी करोड़ों रुपए खर्च करके, तो उनको रिहा किया गया। ये बड़ा सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है, और को इदारों को मिलकर पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। और मैं इस वक्त पूरी कौम को ईद के इस मौके के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले, और हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकल सके। ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। अगर हम होंगे इकट्ठे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा। जो ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ना होगा, हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात एक तरफ करने होंगे, और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमें इकट्ठे होना होगा। इसके बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई मुल्क जो है वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। और किस तरह इकट्ठे होना है, वो इकबाल ने उसका बहुत 80 साल पहले बताया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब मौजें दरिया में होंगी तो खौफ आता है। जब कौम इकट्ठी हो तो पूरी दुनिया डरती है कि ये मुल्क बड़ा मुतहद है। जब वो मौज जब दरिया के किनारे जाती है तो झाग बन जाती है, उसका न सिर्फ उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, वो ख़ुद मर जाती है। तो इकबाल कहता है कि मिल्लत जो है, उसका रब्त जो है, वही कौमों की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं एक हफ़्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करूँगा और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद के रोज़ कोट लखपत जेल का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैदियों से मुलाकात की और तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। जेल सुपरिटेंडेंट की वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल जेल लाहौर के बारे में ब्रीफिंग। जेल में कैदी अपने घर वालों से दूर बैठे हैं, इस मौके पर यह कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने।